السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے خیبر پختونخوا کی پراسیکیوشن کے حوالے سے، جنہوں نے اپنے مطالبات تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے صوبے بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ خطرناک اعلان ہے کیونکہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ کسی بھی عدالتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کی اس ہڑتال کی وجہ سے جو ہے وہ انتظامی امور جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ بالخصوص جو فوجداری مقدمات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ جن ملزمان کے ٹرائل جاری ہیں اور ایویڈنس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں وہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کسی کے اوپر ایف آئی آر درج کرتی ہے، ان کو کسی سیکشن کی سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے جو ہے وہ اوپینین لیتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے ملزمان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ اس پر احتجاج پر ہیں تو جس کی وجہ سے جو عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ جو پولیس کا نظام ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوگا۔ جو درخواست ضمانت جمع کراتے ہیں یا بی بی اے کراتے ہیں ان میں بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے پراسیکیوشن جو ایسوسیشن ہے انہوں نے پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں جو ہے وہ ایک کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں صوبے بھر سے جو ہے وہ کثیر تعداد میں پراسیکیوٹرز جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کنونشن میں حصہ لیا۔ دوران کنونشن میں چونکہ خود بھی وہاں موجود تھا تو یہ بات سننے میں آئی کہ ایبٹ آباد میں فیمیل پراسیکیوٹرز کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن میں چونکہ پشاور میں ہوں اور میں بھی کورٹ سپورٹنگ کرتا ہوں تو جو مقرر تھا اس نے تو ایبٹ آباد کی بات کی، لیکن میں یہاں پشاور کی بات کروں گا کہ جو سیشن کورٹ ہے یہاں پر جو ایڈیشنل سیشن ججز ہے ہر کمرے کے ساتھ جو ہے وہ پراسیکیوٹر کا جو ہے وہ ایک اٹیچ کمرہ ہوتا ہے۔ لیکن یقین جانے جب آپ وہاں جائیں گے تو پشاور جیسے دارالحکومت میں بھی جو ہے ان کی بیٹھنے کی جگہ دیکھیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ گریڈ 17، 18 یا 19 کا افسر ہے، کیونکہ یہاں پر اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر سے لے کے سینئر پبلک پراسیکیوٹر تک جو ہے وہ افسران تعینات ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ جو ہڑتال ہے اس سے جو ہے وہ عدالتی نظام بری طرح متاثر ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مقدمات زیر التوا ہیں، اور اس طرح کی ہڑتال بالخصوص پراسیکیوشن کے ہڑتال ہوتے ہیں، اس سے جو اسپیڈی جسٹس ہے وہ شدید متاثر ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنونشن میں کیا ہوا اور انہوں نے کیا مطالبات پیش کیے۔ د قام د مشرۍ داور اختیار ده، د دې سړي د قام د مشرۍ داور اختیار ده، د دې سړي د نوم سره قائد لیکل پکار دي. Now I would like to invite Mr. President. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، قسم سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں، کیونکہ آج کی یہ تعداد، آپ کے جو یہ نمبرز ہے اور قوا کے ساتھ آپ کی جو یہ محبت ہے، یہ آج تک جب بھی ہم نے قائل دیے تو وی آر ریئلی تھینکفل اینڈ گریٹفل کہ آپ نے اس پہ سوچی بغیر لبیک کہا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ آج آپ اتنے نمبرز میں ابھی تک کنونشن میں سارے جو یہاں پہ اسپیچ کے لیے آئے انہوں نے اس کو کسی نے مطالبات کا کہا ہے، کسی نے ڈیمانڈ کا کہا ہے اور کسی نے مراعات کا کہا ہے، لیکن نئے مطالبات ہیں، نئے مراعات ہیں اور نئے ڈیمانڈ ہے۔ یہ ہمارے حق ہے، حقوق ہے ہمارے، اور یہ حقوق انشاءاللہ اگر کوئی دیتا ہے تو سیدھے منہ سے دے دے اور آسانی سے دے دے، ورنہ ہم اس کو چین کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دفعہ
इस दफा हम दिखाएंगे कि चीनना किसे कहते हैं और चीनते कैसे हैं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। कसम से मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। और मैं सिर्फ एक छोटी सी जो मेरे सामने बात हुई थी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और ये जो फर्स्ट स्ट्राइक काल की थी पुआ ने 2017 में, तो मैं उस वक्त पोस्टेड था एज अ डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नौशेरा। तो मैं उस वक्त कैबिनेट में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। तो जब स्ट्राइक शुरू हो गई तो मेरे पीछे इंशाअल्लाह, तो ये मेरे आपसे वादा है, क्योंकि अभी जो इमरान मरवत साहब जो इधर आए और इतना आप लोगों को जो जोशीला तकरीर था, मैं अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल में जो बातें होती है वो बोल सकता हूँ। तो जब इमरान मरवत साहब ने बगावत का ऐलान किया है तो मैंने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। ट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तो बेसिकली इंग्लिश में है, लेकिन चूंकि मैंने उर्दू में थोड़ी बहुत उसकी ट्रांसलेशन की हुई है ताकि हम यहाँ पे आसानी से समझ आ जाए और बाद में आप लोगों से अप्रूवल लेके इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के शक्ल में आपके सामने पेश। वाजिद मेहमान गरामी और देर पार्टिसिपेंट सबको अस्सलाम वालेकुम। वतन चमकते हुए पत्थरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए पत्थरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। जनाब सदर, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट सुनते आए हैं कि प्रोसिक्यूशन इज द मेन पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन को कोई समझता नहीं है, ना इंतजामिया इसको समझती है, ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दीगर स्टेक होल्डर इसको समझते हैं इसकी इम्प्लीकेशन। अच्छा, कन्वेंशन जो है पुआ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जनरल कौंसिल की मीटिंग होगी जो कि कन्वेंशन के तर्ज पे हमने बुला ली है, और उसमें जो पुआ कैबिनेट जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन की तौसीक और अप्रूवल होगी। तो हमने कन्वेंशन इस पर्पज़ के लिए बुलाई थी कि हमारे दीरीना मुतालिबात और दीरीना मुतालिबात जो है वो आज तक हल नहीं हुए, तो हमने कन्वेंशन को बुला लिया कि इनकी राय ले के आगे क्या करना चाहिए। तो हमारे बड़े मुतालिबात में जो फर्स्ट मुतालबा है वो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस का क़याम है, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का क़याम है जो कि 3 सूबों में है, यहाँ पे नहीं है, और जो हमारे इक्वल स्टेटस है विद जुडिशरी एंड पुलिस, वो उसके बराबर तनख्वाहें और अलाउंसेस हमारे मुतालिबात में शामिल है। तमाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ऑफिशियल व्हीकल, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को गाड़ियाँ मिली हैं और कुछ को अभी तक नहीं मिले हैं, और उनके लिए सरकारी रिहाइश, ख़वातीन प्रोसिक्यूटर्स के लिए जो ऑफिसेज है और बेसिक फैसिलिटीज़ है उनकी मुतालिबात, और प्रोसिक्यूशन एकेडमी है उनका मुकम्मल इख्तियार प्रोसिक्यूशन को दिया जाए। तो ये हमारे मुतालिबात है, और भी बहुत से मुतालिबात है, लेकिन ये मेन मुतालिबात है। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे ये सारे मुतालिबात मन तस्लीम नहीं होते। हड़ताल के मौके पर पेशावर में ऐलान किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान किया, क्या हमारे पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट पे और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस होता है और उनके साथ अपने ऑफिसर सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, और पूरी डिवीज़न पे हमारे रीजनल डायरेक्टर साहिबान के ऑफिसेज है। तो ये हड़ताल हमारी पूरी सूबे की हड़ताल है और ये सिर्फ पेशावर तक महदूद नहीं है। सर आपकी तादाद कितनी है? हमारी तादाद जो है 340+ है। जावेद अली मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2015 से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन एफर्ट्स कर रही है कि जितने भी हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग मुतालबात है उसको पूरा किया जाए। इसकी हद तक हमने काफ़ी दफ़ा जितने भी हमारे मशरान हैं उनके साथ हमने मीटिंग्स की, हमने स्ट्राइक कॉल की, लेकिन अभी तक हमारे मुतालबात वैसे ही के वैसे पड़े हुए हैं। इसी निस्बत हमने ये डिसाइड किया हमारे कैबिनेट ने कि हमें कन्वेंशन बुलाए। उस कन्वेंशन में आज तमाम सूबे के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स ने यहाँ पे शिरकत की और उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि जब तक
हमारे जो ड्यू मुतालबात है ये पूरे नहीं होते तब तक हमारी हड़ताल होगी। तो हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सीरियस ले ले, हमारे साथ बैठ जाए, वरना दिन के हिसाब से हज़ारों केस जो कोर्ट में पेंडिंग हुए हैं वो सारे सफ़र होंगे, और जितने भी मतलब एक्यूज़ है बिहाइंड द बार वो सारे सफ़र होंगे इसी की वजह से। तो तभी हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लिया जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए और हमारे जो ड्यू राइट्स है, जो ड्यू डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फलक शेर है और मैं बुनेर में एज ए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का कन्वेंशन हमने हमारे जो हुकूक है जो हमें सालों से नहीं मिल रहा है उसके बारे में था ये कन्वेंशन। और प्रोसिक्यूशन जो है ये क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना उसका अहम पिलर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो सालों साल दूसरों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं लेकिन हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो ये आज का कन्वेंशन इन हुकूक को हासिल करने की तरफ जो है ना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है हमारा, और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि हमें जल्द अज जल्द हमारे जो जायज़ हुकूक है वो दे दे और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मज़ीद मजबूत करे। जी, मेरा नाम उमर ज़ैब है और मैं डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ चारसदा में। और आज हमारा जो प्रोसिक्यूशन कोआ का कन्वेंशन था ये इस बारे में था कि हमारे देरीना बहुत से मुतालबात थे जिसका हमारे साथ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी दफ़ा कमिटमेंट की थी, लेकिन वो कमिटमेंट्स उन्होंने पूरी नहीं की। इस वजह से हम मजबूर हो गए और हमने आज से ऑनवर्ड जो है हड़ताल का भी ऐलान किया है। और हमारे मुतालबात अगर आगे भी नहीं माने गए तो हम इसी तरह हड़ताल करेंगे। और इसमें हमारे मुतालबात में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ जो वमेन के लिए हमारी फ़ीमेल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके लिए, और हमारे लिए जो है 1.5 दीगर जो हमारे एट पार जो दीगर ऑफिसर्स हैं दीगर डिपार्टमेंट्स के उनके लिए भी जो उनके बराबर हमें भी हुकूक चाहिए, उनकी जो बेसिक पे हैं वो हमें चाहिए, उनके जो 1.5 उनको लगी हैं वो हमें भी लगनी चाहिए। तो ये मुतालबात हैं जो हमारे काफ़ी टाइम से थे, तो इस वजह से हमने जो कन्वेंशन बुलाई है इसका मकसद ये था। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, मैं प्रेस सेक्रेटरी पुआ हूँ। आज जो हमारा जो कन्वेंशन है ये इस सिलसिले में था क्योंकि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग मुतालिबात है जो हम 2017 से कर रहे हैं, जो हमारे जिनवन मुतालिबात है, लेकिन उसमें कोई जो हमारी जो मुतालबात उसको पूरे नहीं किया जा रहा। तो इस सिलसिले में हम मजबूर हुए कि हमने पूरे सूबे के प्रोसिक्यूटर को यहाँ बुलवा कर उससे ओपिनियन ली, उससे राय ली है कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने हमें यूनानिमसली कहा कि चूँकि हमारे मुतालबात बिल्कुल जिनवन है इसलिए हमें बाइकआउट करना चाहिए, हड़ताल करना चाहिए। चूँकि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जो है पूरे पाकिस्तान में जितने भी सिस्टर प्रोविंसेस है उस सब में मौजूद है, यहाँ तक इस्लामाबाद में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, सिवाय KP के। जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के और बाकी स्टेक होल्डर है जिसमें पुलिस है और जुडिशरी है, चूँकि 3 स्टेक होल्डर है, प्रिजन है, उसमें हमारे जो पैकेजेस है, जो सैलरी है वो उसके बनिस्बत हमारी बहुत कम है। हमें सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन अलाउंस दिया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा मुतालबा है कि जो डिस्पैरिटी है इसको रिड्यूस किया जाए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर है।